کراچی وومن جیل میں قیدی خواتین کے لیے مینا بازار سجایا گیا۔ قیدی خواتین کے لیے رنگ برنگی چوڑیاں، کپڑے اور مہندی لگانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی وومن جیل میں پہلی بار مینا بازار سج گیا۔ بازار سے خواتین قیدیوں نے اپنی عید کی خریداری کی۔ جیل سلاخوں کے پیچھے عید گزارنے پر قیدی مایوس نظر آئے، لیکن اسی قید میں وہ من پسند رنگ کے کپڑے اور میچنگ کی چوڑیاں خریدنے کا موقع ملا تو چہرے کھل اٹھے۔ دل گھر پہ پڑا ہوا ہے، چیز لینے کا دل بھی نہیں کرا، پھر بھی کیا کریں، یہاں کا اصول کے مطابق لینا بھی پڑتا ہے۔ ویسے ابھی سوٹ لیا ہے، چوڑیاں لی ہیں، مہندی لی ہے۔ ہم کپڑے ہی نہیں پہنتے عید کو، اگر ہم نہیں جاتے تو بچوں کے ساتھ عید منانا چاہتے تھے، پر یہاں پہ رہ رہے ہیں، منانی تو پڑے گی کسی نہ کسی طریقے سے۔ پھر بھی ہم کپڑے نہیں پہنتے عید پہ۔ دوسری عید ہے یہ، یہاں پہ کچھ اچھا نہیں لگتا، جیل ہے ظاہر ہے، اور بچے نہیں ہیں، فیملی نہیں ہے، اور بہت زیادہ مس کرتے ہیں اپنوں کو۔ جب آپ لوگ آتے ہیں باہر سے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اسی طرح اپنی زندگی میں واپس لوٹ جائیں جس طرح ہم تھے۔ فلاحی ادارے کی جانب سے سجائے گئے مینا بازار میں 175 سے زائد قیدی خواتین کو خریداری کروائی گئی۔ یہ اچھوتا خیال اس طرح سے آیا کہ جہاں پہ جو بھی قیدی ہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا خواتین ہوں، وہ اسی معاشرے کا ہمارے حصہ ہیں اور کسی ناکردہ یا کردہ جرائم کی سزا یہاں پہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح سے نہیں سوچا تھا کہ ان خواتین کے لیے جیل کے احاطے میں ہی ایک مینا بازار کا اہتمام کر دیا جائے، جہاں پر خواتین اپنی پسند کے نہ صرف سوٹ خریدیں بلکہ اپنی جیولری بھی پسند کی لیں، مہندی بھی لگوائیں اور چوڑیاں بھی لیں۔ قید میں عید منانے والی خواتین آنکھوں میں آزادی کا خواب سجائے بیٹھی ہیں۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ اقصیٰ شاہد، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ عید کی خوشیاں اپنوں میں منانے جانے والوں کے لیے پاکستان ریلوے کی جانب سے آج دوسری عید اسپیشل ٹرین کراچی کینٹ سے رات 8 بجے لاہور روانہ۔ شہریوں کی بڑی تعداد اس وقت کراچی کینٹ اسٹیشن پر موجود ہے۔ تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ، پردیسی خوشی سے نہال، رخصت سفر باندھ لیا۔ پاکستان ریلوے کی جانب سے اندرون ملک روانگی کے لیے عید اسپیشل ٹرین کا اہتمام۔ کراچی سے دوسری عید اسپیشل ٹرین آج رات 8 بجے روانہ۔ مسافر مختلف ٹرینوں میں اندرون ملک جا رہے ہیں اور اپنے اہل خانہ سے ملنے کے لیے بے تاب ہیں۔ عید کی چھٹیوں کے لیے ہم گھر جا رہے ہیں، ٹکٹیں ہمیں بڑی آسانی سے مل گئی ہیں، ہماری کمپنی نے ٹکٹیں کروائی ہیں اور بہت اپر کلاس ٹکٹیں ہیں جو ہم جس پہ جا رہے ہیں ٹرین پہ۔ ہم عید کی چھٹیوں میں اپنے گھر جا رہے ہیں، اپنے پیاروں کے پاس جا رہے ہیں۔ کراچی کا ماحول بہت اچھا ہے، کام بھی بہت اچھا ہے، ہمیں بہت خوشی ہے کہ جلد سے جلد اپنے گاؤں پہنچ جائیں، لیکن ٹرین جو ہے وہ کچھ وقت لے گی، اس لیے ہم بہت خوش ہیں اور ہمارے پیارے ادھر بھی بہت خوش ہیں۔ عید اسپیشل کے آخری ٹرین کراچی سے راولپنڈی کے لیے کل بروز جمعہ سٹی اسٹیشن سے رات 9 بجے روانہ ہوگی۔ کیمرہ مین عبدالواحد خان کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ عید الفطر کے موقع پر کراچی سے آبائی علاقوں کا رخ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، جس کے باعث بس اڈوں کی رونقیں عروج پر پہنچ گئی۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی سے ہر سال عید پر لاکھوں افراد اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہوتے ہیں، جن میں بڑی تعداد انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بس اڈوں پر مسافروں کا رش بڑھ گیا ہے، جہاں ٹرانسپورٹرز کی من مانیاں عروج پر ہیں۔ مسافروں کا شکوہ ہے کہ جس طرح پہلے سینما گھروں میں ٹکٹ بلیک ہوتے تھے، اسی طرح ٹرانسپورٹرز بھی کرایوں میں من مانی کر رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کرایہ بڑھاتے ہیں اور جو فیول ہوتا ہے وہ تو وہیں پہ ہی ہوتا ہے، بس یہ اپنے جیب میں ہی سارے چیزیں جاتی ہیں ان کے پاس، نہ ان کا سندھ گورنمنٹ کا کوئی یہاں پہ رول ہے، نہ سندھ گورنمنٹ والے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ والے ادھر آتے ہیں تو کہ ان کی ٹکٹس وغیرہ چیک کریں، بھائی کتنا آپ نے کرایہ بڑھایا ہے یا کتنا کرایہ چل رہا ہے۔ مسافر کہتے ہیں کہ فیول کی قیمت بڑھی نہ ٹول ٹیکس، مگر ٹرانسپورٹرز نے کرائے دگنے کر دیے ہیں، عام آدمی کہاں جائے؟ کرائے بہت بڑھا دیے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کا ہمیں کوئی رول نظر نہیں آ رہا اسے امپلیمنٹ کرانے میں، اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیوں بڑھائے ہیں جبکہ کوئی پیٹرول کا ریٹ نہیں بڑھا، تو یہ مختلف آئیں شائیں اور بائیں جیسے بہانے بناتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیہاڑی دار مزدور اور عام بندہ جو اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے جا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے۔ کراچی انتظامیہ کی جانب سے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے اڈے شہر سے باہر منتقل کرنے کے فیصلے پر جزوی عمل درآمد نظر آیا، تاہم اب بھی 40 سے 50 غیر قانونی اڈے مضافاتی علاقوں میں موجود ہیں، جہاں مسافروں کو رش برقرار ہے۔ کیمرہ مین اجلان شیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔
खुशबू का इस्तेमाल इंसान की शख्सियत को निखारता है। माह सियाम और ताक रातों में खुशबू का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। कराची की बोतल गली में इन दिनों शहरियों का रश देखा जा रहा है। यहाँ खुशबुओं की मुख्तलिफ इक़साम दस्तयाब हैं। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में देखिए। खुशबू शख्सियत में एतमाद और दिलकशी बढ़ाने का जरिया। खुशबू सिर्फ महक नहीं बल्कि एक जज्बाती तासुर छोड़ने का जरिया भी है। अगर आप मखसूस खुशबू लगाते हैं तो ये दूसरों के जहन में आपकी याद को ताज़ा भी रखती है। कहा जाता है कि खुशबू का इस्तेमाल मूड, मजाज और रवैये को बेहतर भी बना सकता है। माह सयाम में खुशबू का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ईदगाह जाते हुए बाएहतमाम इतर लगाया है। कराची की बोतल गली में इन दिनों खुशबू की खरीदारी के लिए शहरियों का रश है। दुकानदार मोहम्मद आसिफ कहते हैं, हमारे पास खुशबू का वसी जखीरा मौजूद है। खुशबू लगाने से जहनी सुकून मिलता है। देखिए अरबिक में तकरीबन हमारे पास 700-800 आर्टिकल है तकरीबन, और फ्रेंच में आपको 300-400 आर्टिकल मिले तकरीबन। आपको यूरोप साइड की और एशिया साइड की तकरीबन जितनी फ्रेग्रेंस आपको मिल जाएंगे मेरी आउटलेट के ऊपर। शहरियों का खुशबू से मुताल्लिक कहना है कि इतर लगाना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा एहसास होता है। खुशबू मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, और ख़ास तौर पर जब 27वीं रात हो और 27वीं रात के साथ एक जुम्मा और जुम्मतुल विदा शामिल हो जाए तो हम सबको खुशबू का एहतमाम करना चाहिए। ख़ुद भी लगाना चाहिए, दूसरों को भी इसके बारे में ताकीद करनी चाहिए ताकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक जो है वो ज़िंदा रहे। सबको लगानी चाहिए, हमारे नबी की सुन्नत भी है। और लोग इस टाइम पे जो है मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाव लगा हुआ है, घूम रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, इतर ले रहे हैं, परफ्यूम ले रहे हैं, सब अपनी ईद की तैयारियों में मशहूर हुए हैं। इतर फरोशियों का कहना है कि जैसे कपड़ों का इंतखाब आपके ज़ौक़ को जाहिर करता है, वैसे ही खुशबू आपकी नफासत और सलीका मंदी की नुमाइंदगी करती है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। आयशा मंजिल पर मुसाफिर बस की टक्कर से खातून की हलाकत का मामला। मकतूला के शौहर ने बस मालिकान और ड्राइवर पर 4 करोड़ 69 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। कराची के ट्रैफिक हादसात की अदालतों में गूंज। आयशा मंजिल पर मुसाफिर बस की टक्कर से खातून की हलाकत का मामला अदालत पहुंच गया। सीनियर सिविल जज वस्ती की अदालत में मकतूला के शौहर ने बस मालिकान और ड्राइवर पर 4 करोड़ 69 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मुद्दई के वकील एडवोकेट उस्मान फारूक का कहना है कि वाकई ड्राइवर की संगीन गफलत से पेश आया। पुलिस रिपोर्ट में भी ये बात वाज़ेह हो चुकी है। बस थी, तेज़ रफ्तारी से आ रही थी और उसने जो है वहाँ पर ये मोटरसाइकिल के ऊपर सवार थे, अपने हस्बैंड के साथ ये खातून भी थी, तो वहीं पे उसने जो है टक्कर मारी और वहीं ऑन द स्पॉट जो है उनका इंतकाल हो गया। और बाकी जो है वो जो शौहर थे उनके भी ज़ख्मी हुए थे और उसकी भी जो है सेक्शन उसके अंदर मेंशन है। और दूसरा ये है कि फेडरल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के तहत हमने हर्जाने का जो है दावा किया है। मुद्दई के वकील के मुताबिक हर्जाने में घरेलू काम, चाइल्ड केयर, खाना पकाना, कफन दफन, वकील की फीस और दीगर अखराजात शामिल हैं। अदालत ने केस के हवाले से 23 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का मसला बरकरार है। शहरियों को सहर व इफ्तार की तैयारी में मुश्किलात का सामना है। जैकब लाइन, नॉर्थ कराची और ख्वाजा अजमेर नगरी समेत दीगर मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। रमजानुल मुबारक का तीसरा अशरा भी इख्तिताम के करीब पहुंच गया, लेकिन कराची वालों का गैस का मसला हल ना हो सका। शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी की शिकायत बरकरार हैं। जैकब लाइन, नॉर्थ कराची, सर सैयद टाउन, ख्वाजा अजमेर नगरी, लियारी और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। गैस का मसला हल ना होने पर शहरी भी फट पड़े। कहते हैं रोजमर्रा के उमूर में खलल आ रहा है। हुकूमत गैस की फराहमी बेहतर बनाने के लिए इकदामात उठाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रमजान शरीफ है, अल्लाह से तो डरे ये लोग, अल्लाह से भी नहीं डर रहे ये लोग। और फिर ये गैस देखे, इनके पास कैसे गैस आ रही है, इनके पास भी तो आ रही है ना। ये सब मिली भगत है। हम आवाम को इतना जुल्म कर रहे हैं। हम वज़ीर आला से गुजारिश करते हैं कम से कम हमारे बच्चे खाना तो टाइम से खाए। हम घर पे जाते हैं, ना खाना होता है, ना गैस होगी तो खाना बनेगा ना। तो अभी हम इतने मजबूर हो गए तो हम क्या करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस के मसाइल पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है ताकि शहरियों को इन मुश्किलात से निजात मिल सके। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। यहाँ आपको बताएं कि IMF और पाकिस्तान के कामयाब मुज़ाकरात स्टॉक मार्केट में तेजी का सबब बन गए।
सरमाया कारों ने ऑयल एंड गैस समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में खूब खरीदारी की। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। IMF मुआहदे के असरात स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी आ गई। आज सुबह से ही स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई। रेकॉर्डिंग पर हुकूमत के मुस्बत इकदामात ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। ऑयल एंड गैस समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में शेयर्स की खरीदारी हुई। स्टॉक माहिर शहरियार भट्ट ने कहा कि यह हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए मुस्बत रहा। IMF के साथ मुलाकात, IMF से मामलात खुशसलूबी से तय हुए। वैल्यू स्टॉक में सरमायाकारों ने खरीदारी की। देखिए, ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुस्बत रहा। खासतौर पे IMF के साथ मामला खुशसलूबी से तय हो गए, जिसके बाद मार्केट में हमने एक बुल रन देखा। आज चूंकि लास्ट वर्किंग डे है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्टिलिटी देखी जा रही है। अपसाइड के ऊपर प्रॉफिटिंग देखने में आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ मार्केट डिप साइड के ऊपर आती है, जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उनके अंदर कंटिन्यू सरमायाकार बाइंग भी कर रहे हैं। तो ये मार्केट का हिस्सा है। लॉन्ग वीकेंड से पहले लोग कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपनी पोजीशन कम से कम कैरी कर सकें। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 34 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,806 की सतह पर बंद हुआ। इंडेक्स की बुलंद सतह 1,18,147 और कम तरीन सतह 1,17,571 रही। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर मशीनरी दरामद करने का इंकशाफ। FBR के मुताबिक जालसाज कंपनी ने अरबों रुपए मालियत की मशीनरी पर 21 करोड़ 80 लाख रुपए की ड्यूटी चोरी की। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। FBR की बड़ी कार्रवाई, जाली मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर मशीनरी दरामद कराने का इंकशाफ। FBR के डायरेक्टरेट ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट की रिपोर्ट जारी। जाली स्टेटस पर बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी पकड़ी गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जालसाज कंपनी ने अरबों रुपए मालियत की मशीनरी पर 21 करोड़ 80 लाख रुपए की ड्यूटी चोरी की। शेरशाह में MS सुलेमान इंडस्ट्रीज ने 5 साल में 2 अरब 40 करोड़ रुपए की मशीनरी जाली मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस पर दरामद की। टैक्स चोरी पर जालसाज कंपनी के खिलाफ कस्टम एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई। मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अशरफ खान, सिटी 21। FPCCI ने तरसीलात ज़र के मुस्तकबिल के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू का कहना है कि खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए वीज़े की सख्ती के बायस तरसीलात ज़र 25% तक मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान को बरामदात पर तवज्जो देनी होगी। FPCCI में सेल टैक्स से मुतालिक तब्दीलियों को ख़त्म करना होगा। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में तरामीम के इंडस्ट्रीज पर असरात। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। FPCCI में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू बोले, IMF से छुटकारा पाने का वाहिद जरिया सिर्फ सनती तरक्की है। पाकिस्तान का तिजारती खसारा तरसीलात ज़र से सहारा तो पा रहा है, मगर आने वाले दिनों में इन पर इन्हिसार करना मुश्किल हो सकता है। खुसूसन खलीजी ममालिक में वीज़ों के अखराज पर सख्ती की जा रही है। इंडस्ट्री को जब तक हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को मजबूत नहीं करेंगे, हम IMF से निजात नहीं पा सकते। हमें वरना हमेशा IMF की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये जो रेमिटेंस हमें बचा रही हैं, शायद आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज़ ने जो वीज़ा पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमारे वर्कर्स उतनी तादाद में उधर जाएं। चेयरमैन ज़राई टास्क फोर्स FPCCI शामलान मंगलानी ने कहा, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में तब्दीली के बायस कपास की पैदावार बराह रास्त मुतासिर हुई। फैक्ट्रियों को कपास की तरसील में भी कमी आई। रवां साल कपास 12 मिलियन गांठों से कम होकर 5 मिलियन तक पहुंच गई। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही है कि आपके तवसल से कि हम सिर्फ यही कहेंगे कि हम किसी की कोई मुखालफत नहीं कर रहे हैं, कोई ये फैसिलिटी स्कीम में। हाँ, यही नासिर साहब ने जो बात की कि ये लूप्स हैं जिसको हमने ठीक करना है, लेकिन हमें सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अगर लोकल कॉटन पे 18% टैक्स पे होता है, जो स्पेंडर ने पे करना है, तो इम्पोर्टेड पे भी करें बस, और हमारा कोई मुतालबा नहीं है। FPCCI का हुकूमत से मुतालबा है कि मुकामी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए ताकि मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मारूफ समाजी कारकुन राव अब्दुल्ला बदर की जानिब से 26वीं इफ्तार मुकम्मल। कहते हैं कि गुज़श्ता 5 सालों से गोरा कब्रिस्तान पर शहरियों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हुसैन की इस रिपोर्ट में।
माह मुबारक के आखिरी अयाम, लेकिन नेकियां समेटने का जज्बा बरकरार। गोरा कब्रिस्तान के करीब 26वीं अफ्तार का भी एहतमाम किया गया, जिसमें रोजेदारों ने अफ्तार किया। समाजी कारकुन राव अब्दुल्ला बदर और रजाकार कहते हैं कि गुज़िश्ता 5 साल से अफ्तार दस्तरख्वान सजाते हैं और रोजाना 600 अफराद अफ्तार दस्तरख्वान से मुस्तफीद होते हैं। हमारे जितने भी सारे वॉलंटियर्स हैं वो सारे मतलब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और मतलब वो अपनी तरफ से अपनी पूरी एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिला सकें। रोज़ा अफ्तार खुलने के बाद भी जिस तरह आप लोगों ने देखा है, हम लोग रोड के उस पार भी अफ्तारी भिजवाते हैं सो दैट अगर जो लोग दूसरी तरफ से जा रहे हैं वो भी अपना रोज़ा वक्त से खोल सकें। और रोज़ ऑलमोस्ट इसी एवरेज के साथ आते हैं, 2 साइड पर दस्तरखान लगाते हैं। छोटे बच्चे वॉलंटियर हमारे सपोर्ट के लिए आते हैं, वो काम कराते हैं। हम बड़े बड़े जो हैं हम सिर्फ ऊपर से मैनेज करते हैं। That's how it goes. अल्लाह का शुक्र है, बस हर साल अल्लाह ताला करा देता है पूरे 30 रोज़े। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 600 प्लस लोगों को अफ्तारी कराई है, ठीक है, जैसा कि हमारा हर रोज़ अफ्तार होती है। इंशाल्लाह कल के दिन हमारा क्यों 27वां रोज़ा है, जुम्मतुल विदा है, तो हमने ये सोचा है कि यहाँ पे हम लोग इंशाल्लाह मंदी का इंतज़ाम होगा, चूड़ियाँ, मेहंदी, ईदी डिस्ट्रीब्यूशन सारे हम लोग जो ईद से पहले खुशियाँ लोगों में बांट सकते हैं, तो मुग़य्यर हज़रात की सपोर्ट के साथ हम लोग कल वो भी करेंगे। और फिर हमने सहरी की शुरू कर दी है आज से, बल्कि कल से इंशाल्लाह हम सहरी बांटना शुरू करेंगे। मुंतज़मीन का कहना है कि रमज़ान में मुस्तहिकीन में ईद गिफ्ट भी तकसीम करेंगे, जबकि औरंगी टाउन में 27वीं सहरी का आगाज एहतमाम भी किया जाएगा। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ मुबश्शिर हुसैन, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।